अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ लाहौर में पेश आया एक अनोखा जुर्म, जिसके अंदर एक टेक्नीशियन ने एक खातून का ऑपरेशन कर डाला। खातून की घर जाने के बाद हालत बिगड़ी और उसे दोबारा अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि डॉक्टरों ने तो उसका ऑपरेशन किया ही नहीं, बल्कि अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के अमले की मिली भगत की वजह से ये एक हादसा जो है वो पेश आया है। अब पुलिस ने कितने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है, मुद्दई का इस हवाले से जो उसकी वालदा के साथ ज़्यादती हुई उस हवाले से क्या कहना है, एमएस ने कितने लोगों को इसके अंदर सज़ा दी है, और पीएमए यानी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जिसका डॉक्टरों के हवाले से एक अहम किरदार है, वो इस वाक़े के ऊपर क्या कहते हैं, ये तमाम तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। चंद रुपयों की लालच के पीछे म्यू अस्पताल के अंदर एक ऐसा घिनौना फेल हुआ कि जिसके अंदर 80 साल खातून की जान जो थी वो जाते जाते बच गई। ये वाक़या कैसे पेश आया, वालदा जो थी, वो जो खातून थी 80 साल, वो म्यू अस्पताल में किस चीज़ के इलाज कराने के लिए आई थी और कैसे ये मुल्ज़िमान उनको मिल गए, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए जो मुतासरा खातून है उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं और इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि इनके साथ क्या बीती है। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। आपका इसमें ग्रामी? आज़म साहब, क्या हुआ, आप किसको लेके आए थे यहाँ पे अस्पताल में और फिर क्या हुआ आगे? पाने थे मैं अपनी मामा ने लैके आया एमरजेंसी च, उन्होंने हैगा सी कमर दे विच बेड सोल। अच्छा, ठीक है ना, उन्होंने ड्रिप शिप उत्थे लाई, उन्होंने कहा जी तुसीं सर्जिकल टावर च लै जाओ। ठीक है ना, मैं इत्थे सर्जिकल टावर च लैके आया, डॉक्टरां ने चैक करवाया, डॉक्टरां ने कहा जी ਉਹ MTU ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। अच्छा, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਜਾ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ ਲਿਆਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਭਾਈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਵਹੀਦ ਬੱਟ ਹੈ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿੱਟ ਵੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਟੋਪੀ ਵੀ ਪਹਿਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ उसको पता था कि आप अपनी वालदा का किस चीज़ का इलाज कराने लाए हैं? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਰਚੀ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਨੇ। ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇਖਿਆ ਭਾਈ ਨੇ, ਐਡਾ ਕੁ ਜ਼ਖਮ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ कोई टीका शीका नहीं लाया, कोई सुन नहीं कीता? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਦੀਦ ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 5 ਇੰਚ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। अच्छा, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਡ੍ਰਿਪ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦਵਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕਰ ਦੋ, ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਦੀਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟ ਪਾੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਪਰਚੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਅੱਧੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ठीक है। ਮੈਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਬੁੱਢੀ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਪੱਟੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਘਰ ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। सही। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਪੱਟੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਘਰ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ठीक ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਗਏ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਆ ਵਹੀਦ ਬੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਵਹੀਦ ਬੱਟ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ? ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਖਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜ਼ਖਮ ਜਾਨੇ ਕਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜ਼ਖਮ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਛੁਰੀ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ 5 ਇੰਚ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਏਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਮਾਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 82-84 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਛਾ, ਦੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਘਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਿਰ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਿਲਾਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਸਤਾ ਹੋਣ ਆਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਹੋਣ ਆਂਦਾ। ਕੁਝ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਪੱਟੀ ਕਰਨ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਰ, ਅਗਲੇ ਅੱਛਾ। ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਪੱਟੀ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਵਹੀਦ ਬੱਟ? ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ।
ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਤਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ MS ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ MS ਕੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਤਾ। ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। 3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ZH ਰਹੇ, ਬਲੀਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰ। 2 ਬੋਤਲਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 2 ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸਰ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ MS ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ MS ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦਾ ਰੈਫਰਲ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। MS ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਿੰਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ MS ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ MS ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ MS ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ MS ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਂ MS ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਗੈਰਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ? ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚੌਂਕੀ ਕੌਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵਹੀਦ ਭੱਟ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ MS ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ MS ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਵੀ। ਫਿਰ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੌਂਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੈਫਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੁਣ ਵਹੀਦ ਭੱਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ 14ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਸਰ, 13-14 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਨੇ ਹੁਣ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਸ ਸਰਜੀਕਲ ਵਾਰਡ? ਜੀ ਸਰਜੀਕਲ। ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਹੁਣ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਾਣੇ ਵਾਲੀ ਨਾਲੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਆਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਐਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਣਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਣਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਹਦਾ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਟਰੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। MS ਸਾਹਿਬ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨਿਆ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਏ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੱਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਮਲੇ ਦੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮਾਂ ਜੀ ਦਾ ਐਡੇ ਦਿਨ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਬੜੀ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।
आज़म साहब की आप गुफ्तगू सुन रहे थे, अल्लाह ने इनकी वालदा की ज़िंदगी लिखी हुई थी तो एक बड़ा सानिया होते होते बच गया और हादसा तो बहुत बड़ा है। तकलीफ़ भी, बुज़ुर्ग खातून हैं, 80-84 साल उनकी उम्र है और जिस तकलीफ़ और अज़ियत से वो इस टाइम गुजर रही हैं वो सिर्फ उनके अहले खाना ही जानते हैं। इतने बड़े अस्पताल में, यानी लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर रोज़ाना 20-30 हज़ार के करीब जो अस्पताल का डाटा बताता है 20-30 हज़ार अफराद का आना जाना होता है और इतने बड़े अस्पताल में इस तरह की नेगलिजेंस हुई है। इसके ऊपर क्या इंतज़ामिया की जानिब से इक़दाम उठाए जा रहे हैं, क्या कोई विजिलेंस कमेटीज़ बनाई गई हैं, को मॉनिटरिंग का निज़ाम बेहतर किया गया और जो अफराद उनके अमला यानी इसके अंदर मुलविस पाया गया है उसके साथ क्या कैसा सलूक किया जा रहा है, क्या उसको सज़ा वगैरह तजवीज़ की गई है, क्या अब तक सज़ा दी गई है, ये तमाम चीज़ें मेयो अस्पताल के एमएस से जानने की कोशिश करेंगे। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं बिलाशुबा क्राइम की दुनिया में ये बड़ा मुनफरिद वाक़या है जिसके अंदर एक नॉन टेक्निकल बंदे ने मरीज़ा जब हस्पताल में आई तो उसको डॉक्टर बन के एंटरटेन किया और उसके बाद अमले की मिली भगत के साथ उसका ऑपरेशन कर दिया। मरीज़ा को तब तक इस चीज़ का अंदाज़ा ना हुआ कि उसको डॉक्टर ने ट्रीट किया है या किसी नॉन टेक्निकल बंदे ने, यानी जो जिसने ऑपरेशन किया वो डॉक्टर नहीं है। लेकिन जब वो घर गए और ज़ख़म ख़राब हुआ और उन्होंने वापस आके इस चीज़ की शिकायत की तो मालूम हुआ इंक्वायरी करने के ऊपर कि वो शख्स जो है वो तो डॉक्टर था ही नहीं। वो शख्स कौन था और उसके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई की गई, क्योंकि मेयो अस्पताल के अंदर ये वाक़या पेश आया तो मेयो अस्पताल की इंतज़ामिया ने बहुत रैपिडली इस चीज़ को ना सिर्फ ग्रिप किया बल्कि जो लोग इसके अंदर मुलविस थे उनको आइडेंटिफाई किया और उनके ख़िलाफ़ सख्त सज़ा का अंदिया भी दिया और मुकदमा भी दर्ज करवाया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट मेयो अस्पताल हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार साहब। उनसे जानते हैं कि उनके नॉलेज में ये केस कैसे आया और फिर अब इस केस को कैसे लेके चला जा रहा है। डॉक्टर साहब वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। मेडिकल दुनिया में शायद इस तरह के वाक़यात होते हों लेकिन मीडिया के ऊपर इनको इस तरह से प्रोजेक्शन नहीं मिलती, लेकिन लाहौर का सबसे बड़ा अस्पताल, इंतहाई कदीमी अस्पताल, उसके अंदर इस तरह का वाक़या पेश आया। आप लोगों को कब इस बारे में इल्म हुआ और फिर उसके बाद कैसे प्रोसेस किया जा रहा है? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया मीडिया का कि हमारे साथ आपने हमेशा ताउन किया और हमें गाइडलाइंस भी दी। इस मामले में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या और वाक़तन इस पर तो कोई एक्सक्यूज़ भी मैं आपको पेश नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा हुआ जी कि जब ये वाक़या हुआ है तो मैं रात को भी राउंड ज़ाहिर करना पड़ता है कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है। तो मैं रात को राउंड करता हूँ, इमरजेंसी के पास सर्जिकल टावर के पास एक साहब ज़रा थोड़े बल्कि थे मेरे इर्द गिर्द, फिर मैंने बोला, मैं कहा जी फरमाइए, कोई मेरा खिदमत है तो बताएं। तो किसी बंदे ने रोका तो उन्होंने झिझक गए, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब चले। मैं कहा कोई काम हो तो बता दीजिए, मेरे डॉक्टर सब मौजूद हैं। दूसरे दिन मैं सुबह ऑफिस आके बैठा हूँ तो सुबह 9 बजे वही शख्स आ गए। उन्होंने इस वाक़े के बारे में बताया कि कल हमारे साथ ऐसा वाक़या हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी माँ बहुत ट्रबल में, हॉस्पिटल घर में हम ले गए थे। हुआ ये था सर कि वो अम्मा जो है 80 साल की बूढ़ी अम्मा थी, मल्टीपल उनको प्रॉब्लम्स थी, ज़ाहिर है एज ज़्यादा और बेड रिडन थी, उनके पीछे एक बेड सोर डेवलप हो गया था। तो उन्होंने हमारी इमरजेंसी में दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि चूँकि ये क्रॉनिक केस और ये घर में हील हो जाएगा, इसको आप रेगुलर ड्रेसिंग करवाते रहिए और मेडिसिन लिख के दे दी। आजकल हमारा एक मेक शिफ्ट अरेंजमेंट हुआ कोविड की वजह से, हमने सर्जिकल टावर में हमारी मेन इमरजेंसी यहाँ पे है, थिएटर वहाँ किया जाए, उसके बाद यहाँ भेज दिया जाता है। MOT माइनर ऑपरेशन थिएटर भी यहीं पे है, ये भी मेक शिफ्ट अरेंजमेंट। तो उन्होंने कहा जी वहाँ जाकर ड्रेसिंग करा लीजिए और ड्रेसिंग के बाद फिर आप इस दिन आप तशरीफ लाते रहे। यहाँ पे जब आए हैं तो ऑलरेडी देखिए घर का भेदी लंका ढाए। हमेशा हमें मुसलमानों की हिस्ट्री में भी है कि हमेशा हमें नुकसान दिया अपने ही लोगों ने। जो हमारा थिएटर असिस्टेंट इंचार्ज होता है वो शख्स वहाँ से जानबूझ के गायब नहीं, एक कमरा पीछे मैंने वहाँ छुप के बैठा हुआ था। वो जाहिर है ये जो शख्स है ये हमारा एक्स प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड था जो कॉलेज के अंदर 2 साल पहले एक सिक्योरिटी कंपनी थी, इसको भी रिश्वतस्तानी उस वक्त निकाला गया। इसने कनेक्शन डेवलप कर लिए, वहीद भट्ट इसका नाम है, और वो जो असिस्टेंट है हमारा थिएटर अटेंडेंट उसका नाम है उस्मान भट्ट। स्टाफ नर्स साथ इमरजेंसी वहाँ से उसको बुला लिया, वहाँ पे उसने जानबूझ के भेज दिया, चली जाओ, सिक्योरिटी गार्ड को भी गायब कर दिया और पूरा एक प्लॉट सेटल कर दिया। और अब जाहिर उस अम्मा का बेचारी का सिक्योरिटी थोड़ा सा एक वूंड था, उसकी थोड़ी ड्रेसिंग करनी थी, साफ़ करना था। इसने क्या किया, उसको स्कैल्पेल लेके उसको कट कर तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। उसकी बेटी या बहुत साथ खड़ी थी, उन्होंने शोर मचा दिया। बहरहाल इसने उसे बंद किया, उन्होंने कहा मैं आप घर ले जाइए, मैं रोज़ाना आपकी ड्रेसिंग के लिए आऊँगा और आपसे 2000 की बजाय 1000 रुपये लूँगा।
लेकिन कहते हैं हमारी माँ रात को बहुत ट्रबल में रही, घर में भी आया, लेकिन हम सुबह आ गए इस तरह को दाखिल उसे करवा दें। मैंने दाखिल करवा दिया, जाहिर है मुश्किल मेरी तो बड़ी एक वार्निंग साइन था। आपको यहाँ पहली दफ़ा पता चला कि ये केस ऐसे हुआ है? तो मैंने फ़ौरन एडमिट करवा दिया उसको यहाँ पे। हम बड़ी मुश्किल में थी, बड़े उसके हालात, ज़ाहिर है बूढ़ी अम्मा और उसके ब्लीडिंग कॉन्टिन्यूस हो रही हो और ट्रबल में थी पेन की वजह से। अल्लाह का शुक्र है कि वो शख्स उसके साथ ही था, ज़ाहिर उसने किसी तरह का अपना नंबर वगैरह दिया हुआ था, तो पुलिस ने उसे काबू कर लिया फ़ौरन, क्योंकि हमारा मुलाजिम था नहीं। हम उसमें नहीं, वही जब वही में पकड़ा और पुलिस ने उसे इंटेरोगेट किया, तो मेरे सामने वो, शायद आपको मैं वीडियो भी आपको सेंड करूँ, उसने फिर नाम बताया कि उस्मान भट्ट के साथ में मिला हूँ। वहाँ से फिर हमने इसको भी इंटेरोगेट, इसको भी हम लाए, इसको फिर सस्पेंड किया, वहाँ से इसके अलावा इंक्वायरी कर दी। हाईएस्ट लेवल मैडम यास्मीन राशिद साहिबा ने और डॉक्टर नबील अवान जो हमारे सेक्रेटरी हैं, दे टुक वेरी सीवियर नोटिस। और मैंने फिर खुद अपनी मीडिया दोस्तों को बुलाया, मैं कहा बच्चों ये मामला हुआ है, मैं खुद आपको बताता हूँ और हम ये कर रहे हैं इंशाल्लाह। आज इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ गई है, एक पे पीडी एक्ट लग गया, जो लड़का हमारा उस्मान भट्ट है उसका तो पुलिस की सख्त दफात लगा दी, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड को निकाल दिया कि जो ड्यूटी थी उसकी तरह, उनको जुर्माना कर दिया उसकी कंपनी को। और वो जो स्टाफ नर्स थी, चूँकि वो गेस्टेड में आ जाती, वो हमने सेक्रेटेरिएट जो हमारे रिस्पेक्टिव उनके इंचार्ज उनको हमने लिख के दे दिया, इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। डॉक्टर साहब, कई दहाइयों पे मुहीद आपका एक्सपीरियंस होगा, आपके मुशाहिदे में ऐसी चीज़ कभी आई है कि अस्पताल में इस तरह से कोई इंसिडेंट हो के जो टेक्निकल स्टाफ है वो किसी का ऑपरेशन कर जाए और फिर मामला? इसमें अब बात छुपानी नहीं चाहिए, अमूमन कहीं ना कहीं ऐसा कोई ना कोई फ्लॉ आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन जो इंचार्ज है। जब वही मिल गया तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि उस लड़के को मिसाली सजा देनी पड़ेगी जो हमारा मुलाजिम है। उस्मान भट्ट से आपकी मुलाकात हुई? जी, इस वाक़े के बाद उस्मान भट्ट से आपकी मुलाकात हुई? मुझे गायब हो गया, लेकिन मैंने सस्पेंड कर दिया। अब उसकी इंक्वायरी होगी, अब पेश होगा। अब पीडी एक्ट है, पीडी एक्ट में मे बी शंटेड आउट फ्रॉम जॉब। किसी से उसने बात की हो या आपको पता चला हो कि उसने ये हरकत की क्यों? पैसों की लालच में? ऑब्वियसली पैसों के, ऑब्वियसली थिएटर अटेंडेंट है और आपको मालूम है थिएटर का इंचार्ज है वो इवनिंग पे, और इवनिंग को उन्होंने सेलेक्ट की। उसकी क्या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है थिएटर इंचार्ज की? थिएटर का जो होता है ना, जो वहाँ पे ये सारे पेशेंट को असिस्ट करता है, डॉक्टर्स को स्टरलाइजेशन वगैरह के मैयर्स को रखता है, तैयार करता है उससे इक्विपमेंट वगैरह को। और वो मोर देन ए डॉक्टर बन चुके होते हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना हो चुका होता है कि वो सर्जरियाँ भी कर लेते हैं डॉक्टर के साथ, उनको गाइडलाइन भी देते हैं यंग बच्चों को। और अगर थोड़ा सा शार्प हो और इसका क्रिमिनल माइंडेड हो तो वो तो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उससे। और समझते हैं कि उस्मान भट्ट का भी ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फ्यू इयर्स एक्सपीरियंस बढ़ गया हुआ था उसी कॉन्फिडेंस के अंदर, उसी कॉन्फिडेंस से इसे हमें। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक SOP है क्या? मैं अगर किसी मरीज को लेके हॉस्पिटल में आता हूँ और दैट पेशेंट रिक्वायर्स सर्जरी या माइनर ऑपरेशन जैसे आप कह रहे हैं, तो प्रोसीजर क्या होता है कि मैं हॉस्पिटल ले आऊँ, आगे मुझे क्या? अगर खुदा न खासा इमरजेंसी है तो सबसे पहले इमरजेंसी में प्रेजेंट होंगे, डॉक्टर एग्जामिन करेंगे, वहाँ SR लेवल के डॉक्टर मौजूद हैं। अगर खुदा न खासा फ़ौरन अगर माइनर उसके स्टिच लगाने हैं या उसकी ड्रेसिंग करनी हो तो माइनर ऑपरेशन थिएटर में भी दिया जाता है, जहाँ पे सिंपल इनिशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो एक सिंपल केसेस होते हैं। उसके बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए, अकॉर्डिंगली उनको मैनेज जैसे डॉक्टर साहब ने उनको किया होता है। अगर सीरियस केस हो तो उसको थिएटर में शिफ्ट किया जाता है, ऑपरेशन या जैसे बुलेट वूंड्स आ जाते हैं तो फ़ौरन थिएटर में शिफ्ट किया जाता है, या पेरिटोनाइटिस जिनको SR वहाँ भी मौजूद होता है, AP लेवल का बंदा वहाँ मौजूद होता है, उनका ऑपरेट किया जाता है। और माइनर ऑपरेशन थिएटर में हमारा थिएटर असिस्टेंट मौजूद मस्ट होगा, वहाँ पे स्टाफ मस्ट होगी, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड मस्ट होगा। डॉक्टर हमारी चूँकि इमरजेंसी बिल्कुल साथ है, तो डॉक्टर इमरजेंसी में उस वक्त रश था काफ़ी ज़्यादा, तो डॉक्टर नहीं थे, वो फ़ौरन बुला लेते हैं, डॉक्टर साहब बिल्कुल साथ ही आए, स्टिच लगा दें, ये कर दें। तो जिनके साथ ये मिले होते हैं वहाँ पर ये बदबख्ती वाला काम कर देते हैं। ये आपका तो बड़ापन है कि आपने जब ये वाक़या सामने आया तो आपने खुद मीडिया को बता दिया कि जी ऐसे मेरे अस्पताल में ये वाक़या पेश आया, वाक़या पेश आ गया, बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज भी कर लिया गया और पता चल जो वो खातून है वो भी रूबा सेहत हैं। आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, इस चीज़ को रोकने के लिए, यानी इस केस को प्रेसिडेंट सेट कर दिया जाए कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए क्या इकदाम? 2-3 चीज़ें बेटा, मिसाली सज़ा नंबर 1, नंबर 2 वो तो हमारे मुल्क में मिलती है जी, लेकिन बेटे जो हमारे बस में इंशाल्लाह ज़रूर देंगे। बाकी जैसे उसको मैंने पुलिस के हवाले कर दिया, ज़ाहिर हमारे पास वो कुछ इख्तियारात नहीं होते, हम उस एक्सीड नहीं कर सकते। उसको सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड करके उसके खिलाफ पीडी एक्ट अब लग के आज उसकी कमेटी बन गई है, हाईएस्ट लेवल के हमारे AMS और प्रोफेसर शामिल है, उसको करार वाक़ई सज़ा जो अकॉर्डिंग रूल्स उसको ज़रूर मिलेगी। और इसको हेल्थ केयर कमीशन ने भी नोटिस ले लिया, वो भी इसको इंशाल्लाह देख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है ना जी, वो ये हमारी अपनी विजिलेंस, जो हमारे लेवल पे एक लैक्सिटी आई है और उसमें हमने AMS चेंज कर दिए हैं
और वहाँ पे बड़ा ही एक सीनियर नारी में डॉक्टर खालिद अवान साहब को लगाया, बड़ा सीनियर मोस्ट आदमी है, उसने जाते वहाँ सिक्योरिटी गार्ड, वहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं। अब थिएटर के अंदर हम कैमरा नहीं लगा सकते, वन अदर रीज़न आप बेहतर समझते हैं। बाहर जितने भी कैमरा, इसी वजह से तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सारी कैप्चर हुई है उसकी जी, और उसको थोड़ा विजिलेंट और किया है। अपनी विजिलेंस, अपने ही इंस्पेक्शन सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और किया अल्लाह का शुक्र है। उम्मीद तो है अल्लाह ने चाहा तो ऐसे आइंदा नहीं होना चाहिए। गॉड फॉरबिड अगर इस तरह का कोई वाकया पेश आए और उसके अंदर मरीज जो है वो सरवाइव ना कर सके, उसके बाद क्या बीइंग एमएस आप क्या समझते हैं क्या होता है? बड़े उसमें तो एक बड़ा क्लियर कट बात है, हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ तो है नहीं कि हमने क्यों ऐसा वाकया होने दिया। अगर प्रोफेसर या सर्जन लेवल के बंदे हमारे ऑपरेट कर रहे हैं तो मिस एप्स अल्लाह बचाए होते हैं, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन वो एक पार्ट ऑफ द गेम। एक अनाड़ी जिसको कोई अथॉरिटी नहीं है वो कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारी बहुत बड़ी एक गलती है हमारे एंड पे। डॉक्टर साहब, आपने अभी इंटरव्यू के दौरान भी मुतअद्दिद दफ़ा कहा कि चीज़ों को बेहतर करने की आप खुद से इनिशिएटिव ले रहे हैं। मियो अस्पताल क्योंकि सेंटर ऑफ कंसर्न इसलिए भी हमेशा रहता है कि एक तो लाहौर का बहुत बड़ा अस्पताल है, दूसरा तमाम अजला से मरीज़ जो यहाँ पे आते हैं और इसकी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि वो पूरे पंजाब के मरीज़ों को एंटरटेन भी करता है, और ज़्यादातर तादाद मरीज़ों की ऐसी होती है जो सब अर्बन एरियाज़ या दूर दराज के देहातों से आती हैं, उनके पास उस तरह से फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वो ट्रैप भी हो सकते हैं। आपने कहा कि विजिलेंट होकर सारा कुछ होगा। हैविंग सेड दिस, लोगों के पार्ट पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके लिए क्या कहेंगे? मैंने अब ये इसी पर्टिकुलर केस में अब जब अल्लाह का शुक्र अम्मा काफ़ी बेहतर होगी, शायद अब डिस्चार्ज भी शायद कर दिया गया, मैंने आज तो ऊपर रहा हूँ, अभी इसके बाद जाऊँगा इंशाल्लाह। अब इसके बच्चे जो सब तो बड़े एक्टिव थे, अब एकदम वो लैक्स होना शुरू हो गए। नहीं डॉक्टर साहब हमने केस, मैं कहा जी आप ना करें, हम इसको फॉलो करेंगे, लेकिन आप कम अज़ कम इतना ज़रूर कीजिए। यह अमूमन होता है हमारे साथ, उस वक्त तो लोग आते हैं इन राइटिंग नहीं, चलो इन्होंने अल्लाह का शुक्र है राइटिंग भी दे दी, लेकिन जो ही देखा कि अम्मा इंप्रूव हो गई, अल्लाह का शुक्र उससे बेहतर हो गई, तो इन्होंने एकदम अपना रवैया बदलना शुरू कर दिया। लेकिन चूँकि हमने अपने हाथ अल्लाह के फजल से रखा हुआ था, इसलिए अल्लाह का शुक्र है उसके केस को हम खुद फॉलो कर रहे हैं, हमारा अपना लीगल अफसर इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। और लोगों का जहाँ तक ताल्लुक है, हम बार बार मैंने हर जगह स्पीकर लगवा दिए हैं। सर्जिकल टावर में आप हमारे कोविड में जाके देख लीजिए, सर्जिकल में जो मेन इमरजेंसी है अनाउंसमेंट करते रहते हैं कि अल्लाह के लिए लोगों के साथ ताल्लुकात मत बनाए, किसी को मत दें कोई चीज़। यहाँ पे हर चीज़ ऑलमोस्ट अल्लाह का शुक्र है 99% फ्री है। डॉक्टर साहब, पुलिस में ना लोग पुलिस ऑफिसर्स के साथ तस्वीर खिंचवाते थे या पॉलिटिशियंस के साथ तस्वीर खिंचवाते थे और उसको फिर बाद में गलत यूज़ करते थे। तो अब ऑफिसर्स के कमरों में भी और पॉलिटिशियंस ने भी अपने कमरों में लगाना शुरू कर दिया कि तस्वीर जो है वो मना है। आपको लगता है कि ऐसे अवेजा करने से या ऐलान करने से लोगों के अंदर कोई आगाही आ सकती है? अवेजा करने से लोग हमारी ज़्यादा कम तो अनपढ़ है, लेकिन बेटा एक चीज़ है कि हम अब मैं राउंड करता हूँ ना, तो हमारे लोग बैठे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप 10 फैमिली के बंदे बैठे हैं, अल्लाह के लिए हम पे भी रहम करें, अपने भी रहम करें। कोविड एरिया है, इवन देन कोविड ना भी हो, ना सफाई मेंटेन कर सकता हूँ ना कोई स्टैंडर्ड। अब देखिए अल्लाह का शुक्र इस गवर्नमेंट ने हमें एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग हुई है कि हमें मेडिसिन में खुल के पैसे दिए। अब आप बेशक वार्ड में आप तशरीफ लेके जाइए, 95% 5% में अपनी नेग्लिजेंस या कोई भी गलती कह सकते हैं या फॉर्मुलरी में शामिल आओ, 95% मेडिसिन दे रहे हैं। ये अल्लाह का शुक्र है, मैं जहाँ जनाब मेरा सर्विसेज, ये अल्लाह ने मुझे करम किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके कि मेडिसिन 100% इमरजेंसी ICU में जो ना हो हमारे पास एक कुशन होता है LP, हम उसके ज़रिए लेते हैं ताकि अल्लाह के बंदों के फंड अल्लाह के बंदों पे जाए। इसमें मैडम यास्मीन राशिद और स्पेशली डॉक्टर नबीला दोनों हमारी वो तो मेंटोर भी हैं, मैडम यास्मीन राशिद जो हमारी मिनिस्टर है और टीचर भी हैं हमारी लीडर शुरू से, वो इस चीज़ में बड़ी स्ट्रिक्ट है कि मेडिसिन की मुझे शिकायत ना आए। तो रात भी इस तरह को 1 बजे करीब उनका मैसेज आया, फलां पेशेंट मियाँ वाली से उसको एडमिट करवाओ, और वो बाहर उसने कहीं उनको मैसेज किया, अल्लाह का शुक्र है वो अल्लाह ने करवा दिया। तो ये चीज़ जहाँ तक ताल्लुक है, इस चीज़ को तो कंटिन्यूस लोगों को एक तालीम देनी पड़ेगी। अच्छा, फिर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, आप कई चीज़ों को केटर नहीं कर पाते। अब एक देखें ना बेटा, अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने बड़े फलाही काम, उसके भी सदके हो गए। अब वहाँ टूटियाँ हमने लगवाई, बड़ी स्टेट ऑफ आर्ट, हमारे जो मुसाफिर खाना है वो सारी की सारी तक आप प्लास्टिक लगाइए, आप यकीनन वो नहीं छोड़ते। आप बेटे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं हर टूटी या हर बंदे के ऊपर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा, जिस तरह आप कोशिश करते हैं, अल्लाह का नाम ले कोशिश करते हैं बेटा। कहीं काम में पकड़े भी जाते हैं लोग, फिर पुलिस का अपना एक सिस्टम है उसको देखती है, लेकिन जहाँ पे हर वक्त 30-40 हज़ार बंदा रोम कर रहा हो वहाँ मल्टीपल कोशिश होती है। हमारे एंड पे कोशिश है बेटा, जैसे आप मीडिया हमारे साथ करता है कि ताउन करता है, हर जगह हमें गाइडलाइन देता है, मीडिया पल्स पे हाथ है। तो आप लोगों बच्चों का बहुत शुक्रिया है कि आप लोग हमें इस तरह गाइडलाइन देते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ MS मियो अस्पताल डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मौजूद थे। बड़ी फ़राख दिली से इन्होंने ना सिर्फ मीडिया को इस सारे केस के बारे में ब्रीफ किया, हमें तो किया ही किया, लेकिन बाकी मीडिया को भी उन्होंने तमाम चीज़ें जो थी वो बताई, और
आपने उनकी गुफ्तगू सुनी कि आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, उसके लिए उन्होंने चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करना शुरू कर दिया है। नए AMS जो है वो तैनात कर दिए जो ना सिर्फ विजिलेंट होंगे बल्कि वो चीज़ों को बड़ी क्लोजली मॉनिटर भी करेंगे ताकि आइंदा ऐसा वाक़यात ना हो। और साथ ही साथ उनका आपने सुना कि उन्होंने स्पीकर्स पे अब तवातर से ऐलान हो रहे होते हैं कि लोगों के साथ ताल्लुकात ना बनाएं और सिर्फ जो ऑथेंटिक जो मुलाजिम है यहाँ पे डॉक्टर है या जो कंसर्न बंदा है सिर्फ उससे ही रब्ता करें, इधर उधर आपको जाने की ज़रूरत नहीं ताकि आइंदा ऐसा वाक़या जो है वो पेश ना आए। आपने जो मुतासरा खातून का बेटा है उसकी भी गुफ्तगू सुनी और MS साहब के जो पॉइंट ऑफ व्यू था, ऑफिशियल पॉइंट ऑफ व्यू था, आपने वो भी सुना। हमारे साथ माहिर नफ्सियात मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह किसी की जान से खेलना, यानी डॉक्टरी जो है वो खुदाई पेशा कहा जाता है और उसको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करना और चंद टकों की खातिर आप किसी बंदे की जान से खेल जाएं, ये कैसे मुमकिन है? मेरा एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। अपेरेंटली देखा जाए तो उसने जो मुझे अभी तक सारी बातों से समझ आई है वो इतना कॉन्फिडेंट हो चुका हुआ था कि उससे गलती नहीं होगी। शायद वो इतने ओवर द पीरियड इतने वो इस तरह के छोटे माइनर ऑपरेशंस कर चुका हुआ था कि उसको लगता था कि ये भी ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा, लेकिन वो ख़राब हो गया। इस सारे केस को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो माहिर नफ्सियात होने के नाते आप क्या समझती हैं, ये क्या है केस, क्यों ऐसे किया होगा उसने? एक तो इंसान की फितरत में शामिल है कि वो अपने आप को ना बहुत चालाक समझता है। एक तो वो जो इंसान जो अपने जब भी किसी इंस्टीट्यूट में वो काम कर रहा है वो पूरा टीम बना के पूरा स्केड्यूल बना के कर रहा है कि जब कोई भी डॉक्टर कोई भी अमला मौजूद ना हो, क्योंकि उसने अगर एक बंदे को मिलाया जो उसके मेंटल कंपैटिबिलिटी के साथ था कि हाँ जी हम दोनों ये चोरी का काम कर लेंगे। इसमें क्या उनको कितना 2-3 हज़ार 10 हज़ार बच जाएगा, ठीक है। मगर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने टीम बनाई कि जी हम लोग ये देखेंगे कि वो बाहर की चीज़ को रखे, जो चौकीदार होगा वो बाहर को देखेगा और वो अंदर जो है वो अपना काम कर लेगा। बात यह है कि एक इंस्टीट्यूट को बदनाम करना जो तुम्हें खाने को दे रहा है, तुम्हें नौकरी दी हुई है, प्लस एक पेशे को बदनाम करना, उस बंदे के ना एथिक्स हैं, मैं कहूँगी कि उसका कोई जैसे ना इन सिंपल वर्ड्स दीन ईमान ही नहीं, ठीक है। उसने ये नहीं सोचा कल को उसकी माँ बहन कोई ऐसी वो भी हो सकते हैं जिनको कोई ऐसी क्वैक बंदा जो है वो उनको डील कर लेगा। मगर हमारा ना ईमान पैसों की खातिर और कभी कभी हम इतने वो सेल्फ सेंटर्ड भी, दूसरा हम कभी कभी इतने बेहिस हो जाते हैं कि बेहिसी हमें काउंट ही नहीं करती कि अगला इंसान पड़ा है हमारे आगे कि क्या पड़ा है। यही जो नशे बेचते हैं लोग, उनके कभी अपने भी उसके हाथों मरे जाते हैं, कोई जो नेगेटिव काम करते हैं, ये इनकी साइकी वही बन जाती है, इनको फ़र्क पड़ना ख़त्म हो जाता है। इनके आगे होता है कि इन्होंने कमा लिया, ये जस्ट लाइक जैसे वो जो PUBG गेम्स हैं, बंदा एडिक्ट हो जाता है ना, तो इसी तरह ये भी वल्नरेबल हो जाते हैं। ये तलाश कर रहे होते हैं कोई ऐसा क्लाइंट मिल जाए जो जिसने पैसे कम देने हो या जो इनके जाल में फंस जाए, और अंदर खाते ये ऐसी चीज़ कर जाते हैं जो पहले तो इन्होंने देखे ना, ये बंदा जो था ये बड़ा, मैं समझती हूँ कि इसने बड़ी प्लानिंग से काम किया कि ये इतने अरसे से काम कर रहा था और इसने किसी को हवा नहीं लगने दी। अनफॉर्चुनेटली जब इतने बड़े इदारे हों तो उसमें अगर ऐसी चीज़ें हो रही हों तो वो हर एक की नज़र में से नहीं जा सकती। और हम कोई वेस्ट में तो है नहीं कि हमारे हर जगह CCTV लगे हों कि हम लोग हर चीज़ को बहुत ही विजिलेंटली मोनिटर कर रहे हों। ऑल तो लगे तो हुए हैं CCTV, मगर उस तरह से हमारा, आपको पता है हम पाकिस्तान में हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टिल हम उतने अपग्रेडेड नहीं हैं। ये फरमाइएगा, ये तो हो गई एक बात, इस किस्म के जो लोग हरकत, यानी अगर आप किसी के साथ फ्रॉड करते हैं पैसों का, वो एक बड़ी मामूली सी चीज़ है ना कि आप उसको सिर्फ उसके पैसों का लॉस कर रहे हैं। यहाँ पर औरत की उम्र है तकरीबन 84 साल, उसका बेटा कहता है 84 साल, पुलिस जो ये आपके हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है वो कहता है 80 साल। उसको बेड सोर है, उसको मल्टीपल इश्यूज़ हैं, और अगर वो टेक्नीशियन वहाँ पर काफ़ी अरसे से काम कर रहा है तो उसको अंदाज़ा होगा कि ये औरत कितनी वल्नरेबल हो सकती है अगर इसका कोई भी चीज़, इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग। उसके बावजूद भी उसने की और 1,000 रुपये की पट्टी उसने रोज़ाना करनी थी। तो अपेरेंटली देखा जाए 10-12 दिन कर लेगा, 10-15 हज़ार रुपया कमा लेगा, 20,000 कमा लेगा। दूसरी तरफ एक औरत की ज़िंदगी थी। इस केस को अगर सिर्फ हम पर्टिकुलरली इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस करें तो फिर आपको क्या समझ आती है बंदे ने क्यों किया होगा?
पैसे है ना सिंपल, हम देखें हमारी हवस नहीं रुकती। एक बंदा पहले चोरी करता है 10 रुपए की, सॉरी आपको इंटरप्ट करूँ, क्रिमिनल अगर 10-15 हज़ार रुपया लेके शूटर, जैसे लाहौर में 10-15 हज़ार रुपया लेके शूटर बंदा कत्ल कर देते हैं, उसके अंदर वो बंदे भी उस तरह के होते हैं, यानी उनकी मेंटेलिटी, उनकी सोसाइटी उस तरह बन जाती है। दे हैव, अब आपने देखे ना, आपने ही बल्कि मुझे बताया कि वो जो पीएन है वो भी उसके साथ मिला हुआ है। जब वो आपस में बात करते होंगे, एक प्लान बनाते होंगे, तो एक दूसरे को कहते होंगे कोई गल नहीं यार, कोई गल नहीं। और हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट उसने शायद ये दिया होगा कि यार मेरे इतने अच्छे केसेस गए, किसी को पता चला तो फिक्र न कर, इसको भी मैं छुपा लूंगा। अब उसकी एक चालाकी है, उसकी एक खातों का इर्द गिर्द करना या चीज़ों को कवर करना, मे बी आई डोंट नो वो कब से कर रहा था और कब से वो धूल झोंक रहा था सबके आगे। बिकॉज हर एक चीज़ देखें, हर अमले को, चाहे इवन मैं कहूँगी स्टाफ को भी, नर्सेज को भी हर चीज़ नहीं पता होती जो निचले तबके को, निचले अमले को पता होती है। बिकॉज दे आर द वंस हु वो सारी एक एक ईची बीची बेड्स के नीचे पेशेंट्स की उनकी बातें सुन रहे होते हैं, 24/7 वो उनके साथ इंटरेक्शन में होते हैं। तो इसलिए ये पैरामेडिक्स जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन ये फिर जो चीज़ जितनी इंपॉर्टेंट होती है ना उतनी ख़तरनाक भी होती है। तो हमें ये देखना है कि एक हम किसी इंसान की लालच को, किसी इंसान की बेहिसी को, किसी इंसान की इंसानियत से गिर जाने को हम मैयर नहीं कर सकते, और ना हम कह सकते कि ये एक पॉइंट था, बहुत से पॉइंट हो सकते हैं। उसकी पता नहीं कितनी मजबूरियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन मैं मजबूरियों को ये नहीं कहूँगी कि उन मजबूरियों की वजह से आप किसी की जान ले लें या किसी को आप एट रिस्क कर लें। ये तो हो गई मुलजिमों की साइड की गुफ्तगू। एक बंदा जो अपनी माँ को इलाज करवाने की नीयत से अस्पताल लेके आ रहा है और छोटा सा ज़ख़म ठीक कराने की बजाय एक हैवक क्रिएट हो जाता है, और वो खातून जो 1-2 दिन में ठीक हो सकती थी, अब पिछले 14-15 दिनों से वो अस्पताल में पड़ी हुई हैं, कभी ठीक हो जाती, कभी ख़राब हो जाती हैं। उनके ऊपर, उनकी नफ्सियात के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा? सबसे पहले मैं कहूँगी कि एक वो सरकारी हॉस्पिटल में आए हुए थे, तो वो सुबह का इंतज़ार कर सकते थे, जहाँ इतने अरसे से वो बीमार हो रही थी। उन्होंने भी जल्दबाजी की। अब आई डोंट नो कि इसके पीछे उनकी क्या वजह है कि उनको जो मिला, और एक अकेला डॉक्टर मिला, कोई नर्स नहीं मिली, कोई नहीं मिला, उन्होंने भी उसी को देख के कर दिया। और ये कौन सा सरकारी हॉस्पिटल में ये होता है कि जी आप ये अभी से दें और अभी आपको पैसे जमा कराएं विदाउट अ कागज़, विदाउट एनीथिंग। मतलब अगर वो, मैं इल्ज़ाम नहीं किसी पे लगा रही, मगर एक तरीक़ेकार होता है, जो भी एक सरकारी अस्पताल में आता है ना, उसको बड़ा पर्ची वर्क करना पड़ता है। कैसे पर्ची वर्क के बगैर उन्होंने उसके ऊपर भरोसा कर लिया, मतलब ये भी एक सोचने की बात है। चलिए, ये तो उनके ऊपर जो ये सारा कुछ उन्होंने इतने स्ट्रेस में किया कि पर्ची भी नहीं बनवाई, पैसों का वो मुंह से मांग रहे हैं, उसको वो हाथ से पैसे दे रहे हैं विदाउट अ पर्ची एक सरकारी हॉस्पिटल में, ये भी नेग्लिजेंस। प्लस एक चीज़ हो जाना, तो ये जो चीज़ हुई है ये थोड़ी सी, मैं इल्ज़ाम नहीं दूंगी, लेकिन शायद स्ट्रेस की वजह से उनसे भी नेग्लिजेंस हुई है। क्या ऐसा बंदा दोबारा सरकारी अस्पताल पे, या औरत, चले वो तो एक ज़ईफ़ औरत है, जो पूरी फैमिली ने ट्रॉमा झेला, वो कितना बैडली इफेक्ट करेगा उसको आइंदा? देखें, बैडली अफेक्ट करने का और जिम्मेदार है, मगर इसमें सरकारी अस्पताल और सरकारी अमला किस तरह से, मैं कहूँगी कि वो जिम्मेदार हो सकता है जब उसके नोटिस में चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, ये आप और मैं बात कर रहे हैं, अभी सरकारी अमले नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि यानी उसको एक ट्रॉमा तो उसको गुजरा ना, तो उसका भरोसा तो उठ जाएगा ना। उसका भरोसा क्यों उठेगा? उसने अपनी गलती नहीं देखनी। वो तो कहता है कि मैंने सही पर्ची ली, पर्ची लेके मुझे माइनर ऑपरेशन थिएटर में भेजा गया, वहाँ पे गया, एक गाउन में बंदा मौजूद था, मैंने उसको पर्ची पकड़ाई, उसने ऑपरेशन शुरू कर दी। पता नहीं, ये चीज़ है थोड़ा सा मेरे लिए अनबिलीवेबल, इसलिए क्योंकि मैं भी काफ़ी अरसे से काम करती हूँ सरकारी अस्पताल में, कि आप जब बस जाए और एक ऑपरेशन थिएटर में सिर्फ एक बंदा खड़ा है, हम कौन सा दांत सिर्फ ठीक करवाने जा रहे हैं, एक ऑपरेशन होने जा रहा है, ये हर चीज़ का अलग। ये जो ओवरऑल मेंटालिटी है, इसकी वजह क्या है? हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस है, हमारे पास एजुकेशन की कमी है, अवेयरनेस की कमी है, और हम जो है ना बड़े क्विक रिजल्ट्स चाहते हैं। बस हमने ये नहीं देखा कि एक बंदा खड़ा है हॉस्पिटल में, तो कोई नर्स क्यों नहीं खड़ी? नर्स के बगैर कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा जी? है वो गया अंदर और उसने देखा एक बंदा खड़ा है, वो माँ को उधर छोड़ आया। मतलब ये सारी देखिए चीज़ को, पूरा बैकग्राउंड, उसकी पूरा कंटेंट देख के हमने बात करनी चाहिए। हमें हम ना कभी कभी अपने प्यारे की खातिर हम जंप कर जाते हैं, फ़ौरन ही उनको ठीक कराना चाहते हैं, हम नहीं देखते कि हम किसके पास जा रहे हैं। अक्सर लोग जो है वो डेंटिस्ट के बजाय उसके कंपाउंडर के पास भी तो चले ही जाते हैं ना, कि बस क्विक रिजल्ट मिल जाए, सस्ता मिल जाए। ठीक है, हम चाहते तो अपनी बेहतरी है, लेकिन कभी कभी वो बेहतरी हमारे आगे भी आड़े भी आ जाती है। बहुत शुक्रिया मिरात गुल साहिबा की, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। कहीं ना कहीं पे जहाँ पर एक हस्पताल इंतज़ामिया की गलती है कि वो उस तरह से विजिलेंट नहीं थे जिस तरह से रहना चाहिए था, तो वहीं
जो मरीज़ हैं उनके लवाहिकीन की भी गलती है कि उन्होंने ना तो सर्कमस्टांसिस देखे जिसके अंदर उनकी माँ का ऑपरेशन हो रहा था, और ना उन्होंने वो तमाम प्रोटोकॉल फॉलो किया जो एक सरकारी अस्पताल में ख्वारी का प्रोटोकॉल जो है वो करना पड़ता है, पर्ची के बाद डॉक्टर की तलाश, तमाम जो प्रोटोकॉल होता है वो भी नहीं फॉलो हुआ। तो उनके एंड पे भी हमारे नफ्सियात के मुताबिक उनके एंड पे भी गलती है। इस केस के अंदर जहां पर हस्पताल इंतज़ामिया का बहुत बड़ा किरदार है, वहीं कुछ हिस्सा जो है, कुछ किरदार जो है वो लवाहिकीन का भी बनता है कि लवाहिकीन को भी नोट करना चाहिए था। जैसे हमारे नफ्सियात ने कहा कि वहाँ पे जब कोई फीमेल ना डॉक्टर थी ना कोई नर्स थी, तो उन्होंने एक मेल अटेंडेंट से कैसे ये माइनर ऑपरेशन करवा लिया। पीएमए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इन तमाम चीज़ों के ऊपर गहरी नज़र रखता है। कहीं पे अगर कोई डॉक्टरों का कोई इशू चल रहा होता है उसको केटर करता है, और बहुत से ऐसी चीज़ें जो डॉक्टरों के हक में हों या उनके ख़िलाफ़ हो रही हों तो उनको भी वो एंटरटेन करते हैं। हमारे साथ पीएमए लाहौर के सदर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वाक़े के ऊपर पीएमए का स्टांस क्या है, ऐसे वाक़यात क्यों कर रूनुमा हो रहे हैं, और आइंदा ऐसे वाक़यात रूनुमा ना हों उसके लिए क्या किया जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ निज़ामी साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ऐन मुमकिन है कि इस तरह के वाक़यात पहले भी अस्पतालों में होते हों, लेकिन इस वाक़े ने एक अलार्मिंग बेल जो है वो बजाई है कि ये वाक़यात हो रहे हैं और इस तरह से मरीज़ों की जानों से खेला जा रहा है। पीएमए कहाँ स्टैंड करती है और क्या स्टांस लेती है? उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अप्रिशिएट कि आप हमेशा माशाल्लाह एक अच्छे टॉपिक्स जो कि हम इग्नोरेंट भी हैं और समझते हैं कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा तो होता ही रहेगा, और उसके अंदर सरकार भी ये समझती है, इंस्टीट्यूशन भी ये समझती है, और जो कंसर्न इदारे होते हैं उन्होंने भी ये तस्लीम कर लिया है कि जितना भी हम जोर लगा लें हम इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। आई अप्रिशिएट योर चैनल और बिलखसूस आपको कि आप जैसी स्टोरीज़ करते हैं, और ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है। और मैं समझता हूँ कि आज जब 2021 है और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर जिसके लिए हमारे लिए, अगर मैं मजहबी लिहाज से, तो हमारे लिए सच्ची बात है इज़ मक्का मदीना का मुकाम रखता है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेयो हॉस्पिटल। मेयो हॉस्पिटल के बारे में हम मेडिकल प्रोफेशनल के अंदर यही कि अगर किसी का दुनिया में कोई कहीं नहीं है तो यू लैंड इन द मेयो हॉस्पिटल। मेयो हॉस्पिटल से या फिर अल्लाह के पास जाते हो तो या फिर आप ठीक हो जाते हो। दिस इज़ ओवरऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। मैं कह रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी के साथ बात ये कह रहा हूँ, और इसी तरह अवामुन्नास के अंदर भी यही है। मेयो हॉस्पिटल से यू विल नॉट सी अ सिंगल केस के जिसको हम आगे कोई रेफ़र करने का कोई सोचता भी हो। मतलब आई हैव बीन ऑनर्ड, मैंने वहाँ पे काम किया मेयो हॉस्पिटल के अंदर, और कहते हैं कि मेयो हॉस्पिटल की तो दीवारें और दरो दीवार भी हैं, इंसान को, किसी जाहिल को भी अगर भेज देंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा मुआलिज और एक बहुत बड़ा लर्नड किस्म का निकलेगा। इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेटली इट डज हैपन। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि वहाँ पे जो काम करने वाले होते हैं, तो मैं एक आपसे शेयर करूँ कि एक सर्जरी का जिसने कि हार्ट लंग ट्रांसप्लांट तक मतलब कहा गया, तो वो बेचारा एक माली था साउथ अफ्रीका के अंदर, लेकिन आते आते करके उसने की। दीज आर इंटायरली डिफरेंट। लेकिन एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के अंदर जो हमारा के एक बहुत ऊंचा मुकाम रखता हो, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन कि जहाँ पे कंट्रोलिंग सिस्टम्स और अथॉरिटीज़, अब देखें इसके साथ क्या है। देखने की ये बात है कि वहाँ पे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है, अभी हाल ही में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो है वो बहाल हो गया, वहाँ पे नॉमिनेशंस भी होगी। हुकूमत एक जिसको समझती है कि सिस्टम बेहतर करने की खातिर MTI मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन एक्ट वहाँ पे लागू, इट इज़ सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी या वो वाला चीज़ आएगा। फिर इनके साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। सर्जिकल टावर इंटायरली एक मतलब एक ऑटोनोमस इदारा है विद इन द मेयो हॉस्पिटल जहाँ पे काम करता है। फिर इसी हाईआर्की के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वहाँ पे डायरेक्टर्स हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट, और वही इन प्रोफेसर्स के साथ आके थिएटर इंचार्ज है, थिएटर इंचार्ज नर्स है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिवली जिन लोगों ने कि वहाँ पे देखना है। मैं बावजूद इसके कि तमाम कदरो एहतराम के, मैं समझता हूँ कि इट इज़ दी नेग्लिजेंस
और वो नेग्लिजेंस जो कि ग्रॉस नेग्लिजेंस है वहाँ पे एक ऐसे इदारे के अंदर कि यहाँ ये सारी अथॉरिटीज़ होते हुए अगर ऐसी चीज़ होती है तो थिंक ऑफ वहाँ पे जहाँ पे कि आपके ह्यूमन रिसोर्स भी कम होगा, वहाँ पे कैसी और क्या चीज़ें ये होती होंगी। एक चीज़ जो आपने फरमाया कि लोगों का कि उनका कसूर है, मैं समझता हूँ कि एज अ पेशेंट उनका कसूर नहीं। जो शख्स इनके साथ है उसको तो पता ही नहीं है कि क्या वहाँ पे नर्स भी होती है। हर वो समझते हैं जिसने वर्दी पहनी हुई है वो सारे डॉक्टर ही डॉक्टर साहब ही समझा जाता है। देयर इज़ नो ऐसी कोई मतलब डिफ्रेंसिएशन की खातिर मैं उनके हवाले से जो एक मरीज़ जाता है, हम वर्किंग और सर्विंग ओवर देयर एज डॉक्टर, या आप दोस्त जो जाते हो जिनको मतलब एक पता है कि इस सिस्टम के अंदर कैसी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक आम आदमी आने वाले को ये पता नहीं है डॉक्टर साहब हैं या नॉन डॉक्टर, और सिस्टम का भी नहीं पता होता कैसे होगा। जिस तरह से खातून 80 साल की खातून थी, बेड सोर था, उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने माइनर ऑपरेशन थिएटर में भेजा, वहाँ पे ये टेक्नीशियन और सिक्योरिटी गार्डों की मिली भगत ही उन्होंने ये कर दिया। किस्मत अच्छी कि वो किसी तरह एमएस तक बात पहुँच गई और एमएस ने उसकी ट्रीटमेंट करनी शुरू कर दी और कर दी। एमएस साहब से जब हमारी बात हुई तो वो कहते हैं कि हमारी कहीं ना कहीं पे नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से हमने एएमएस को भी तब्दील कर दी और मज़ीद विजिलेंट हो रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप समझते हैं कि ये एक वाक़े के बाद मामला जो हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे या ये एज इट इज़ ही रहेंगे? देखिए उमर, मेरा ये मानना है कि ये अफराद जो है ना, और हम सरकार के अंदर भी ये देखते हैं, वहाँ पे ऐसे हुआ डीसीओ को एक ज़िला से करके दूसरे जगह पे भेज दिया, पहले ओएसटी बना दिया फिर उनको दे दी, ये ऐसे दुरुस्त नहीं होंगी कि एक एएमएस को हमने चेंज कर दिया। देन व्हाट मेक्स द डिफरेंस ऑफ इट? ये निज़ाम के अंदर कोई ना कोई चीज़ें लुक इन करने की ज़रूरत है। आई अप्रिशिएट कि अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने ये एक्सेप्ट किया है कि कहीं ना कहीं उसकी नेग्लिजेंस है और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिवली बनती है, तो मैं समझता हूँ कि ये सारा जो टीचिंग वहाँ पे काडर है उनको देखना होगा, सर्जिकल टावर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इंडिपेंडेंट उसको देखना होगा क्या वहाँ पे फ्लॉज हैं, वाई इट इज़ फ्री फॉर ऑल कि वहाँ पे क्यों लोग ऐसे आके घुसे जाते हैं और मतलब एक ट्रॉली मैन जो है वो करता है या सिक्योरिटी गार्ड है उसके साथ। एक तो इसमें ये चीज़ है कि हमारे यहाँ ये इसका मतलब ट्रेंड है कि कहीं ना कहीं उसको फोर्सेप्स पकड़ने की तो इजाज़त दी गई तो उसने ये सीखा ना, एकदम से तो नहीं हो गया। और ये बड़ी देखी जाती है कि जी आजा चल कोई गाल नहीं तू पट्टी कर। बिल्कुल, मैं यही अब ये जो बेड सोर्स हैं, बेड सोर्स बेसिकली जो मेरा मानना है कि उसने कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा कोई सर्जिकल प्रोसीजर तो नहीं किया होगा। ही कुड हैव जस्ट डन मतलब उसके साथ ड्रेसिंग की होगी या उसको वॉश आउट किया होगा। मतलब इट इज़ बियॉन्ड माई इमेजिनेशंस दैट ही कैन परफॉर्म सम सर्जिकल प्रोसीजर ओवर देयर। लेकिन उसने जब सफाई की है तो कोई ना कोई वहाँ से ब्लीड हो गया, ब्लीड उसको वो दबा ना सका या उसको भी इतनी थी नहीं कि कैसे उसको रोकना होगा। लेकिन हैविंग सेड डज नॉट मीन इट इज़ अ जस्टिफिकेशन या उस निज़ाम को जस्टिफाई करने की खातिर है। वो मैं समझता हूँ कि एक तो MTI जिसको समझा जाता है कि ये बेहतर है, ये हुकूमत की कतई तौर पर कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि MTI के साथ ये चीज़ें। आपको लगता है कि ये जो एक्ट आ रहा है उसकी वजह से ये चीज़ ऐसी हो रही है? मैं समझता हूँ कि अभी तो वो शुरू हुआ है, सो उसके लिए हम उसको नहीं गर्दान सकते, लेकिन उसके साथ होगा ज़रूर। द रीज़न बीइंग के MTI एक्ट के अंदर जब ये चीज़ें आएंगी कि स्क्वीज़ करेंगे, थोड़े लोगों से ज़्यादा काम लेने की कोशिश करेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना चाहेंगे इस इंस्टीट्यूशंस के अंदर, एंड यू नो कि हेल्थ एंड एजुकेशन, सिक्योरिटी एंड द जस्टिस सिस्टम, इनके अंदर कौमें इन्वेस्ट करती हैं। ये कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है और कोई कौम भी। और अभी आपने देखा कोविड हुआ है, कोविड के अंदर जो सो कॉल्ड हमारे जो सुपीरियर थे, अमेरिका, बरतानिया, ये सारे उनके हेल्थ सिस्टम्स हैज़ बीन फेल्ड। और मेरा ये मानना ये है, मतलब मैं बड़ा इसको कन्विक्शन के साथ ये चीज़ मानता हूँ कि कोविड-19 ने इन जो फेल्ड सिस्टम थे, लोग कहते हैं ना कि सिस्टम्स को फेल कर दिया, मैं समझता हूं कि कोरोना ने जो फेल्ड सिस्टम थे उनको एक्सपोज करके रख दिया। जो स्टेबल कंट्रीज थे लाइक वाइज द चाइना, ये ऐसे कंट्रोल जहां पे होते हैं जहां पे एक हेल्थ जो है लोगों के लिए प्रायोरिटी है, इट इज़ नॉट अ बिजनेस, इट इज़ नॉट इंश्योरेंस कि उसके साथ करके सिस्टम को लाया जाएगा, वहां पे उन्होंने बेहतर किया। एंड दैट स्टैंड्स ट्रू फॉर पाकिस्तान कि पाकिस्तान के अंदर भी आके जब तक हम इदारों को ठीक नहीं करेंगे, जब तक हमारी तरबियत ठीक नहीं होएगी, जब तक हमारी ट्रेनिंग ठीक नहीं होएगी और हमारे जो शऊर है, मैं समझता हूँ ये एटीट्यूड और बिहेवियर मेडिकल एजुकेशन के अंदर, बल्कि सोसाइटी के अंदर ही मैं समझता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ द एटीट्यूड एंड बिहेवियर वी हैव, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना। और ये MS साहब का सिर्फ ये कहना नहीं, अगर MS साहब इतना ही समझते तो खुद इस्तीफा दे देते कि यार मेरे होते हुए हो गया, AMS को क्यों तब्दील कर दिया भाई। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अभी आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर बात की कि डॉक्टर्स जो हैं वो जो बड़ा बड़ा सा काम होता है वो कर देते हैं और फिर अपने कंपाउंडर वगैरह को कहते हैं कि यार तुम लोग ये कर दो। तो आप लोगों को नहीं लगता कि इसके अंदर डॉक्टर्स की भी बहुत बड़ी गलती है कि
आप देखें, अब मैं किसी अगर डॉक्टर के पास जाता हूँ तो वो सरसरी सा तो मुझे देख लेते हैं, उसके बाद उनका कंपाउंडर जो होता है वही देख रहा होता है, जो असिस्टेंट जिसको हम कहते हैं वो मुझे देख, यानी ड्रेसिंग श्रेसिंग सारा कुछ वो करता है। तो आप लोगों ने उनको हिम्मत नहीं दी, आप लोगों ने उनको ये बढ़ावा नहीं दिया कि वो इस पॉइंट पे आ गए कि वो कहते हैं कि हम भी डॉक्टर वाला काम कर सकते हैं। देखिए, क्वैकरी इज़ अ वेरी बिग इशू। क्वैकरी के लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन बना 2010 के अंदर आके। उसने भी अगेन, जैसे कि हमारे मखसूस इदारों के अंदर ये देखने में आता है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जब ये क्वैकरी को रोकना था, और क्वैकरी को रोकने की खातिर क्या है कि जो काम किसने करना है, आप देखें कि क्या हमारे पास उतनी फोर्स है या नहीं है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स उतना है कि नहीं है। देखने में ये आया पाकिस्तान और बिलखुसूस पंजाब के अंदर आके कि घोस्ट यहाँ पे पैरामेडिकल स्कूल्स बने हुए हैं जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो कि कागज़ों के अंदर हैं और ट्रेनिंग प्रैक्टिकली वहाँ पे नहीं होती। उसको देखने के लिए हेल्थ केयर कमीशन ने यह किरदार अदा करना था। एज फार एज द डॉक्टर्स आर कंसर्न, जो आप मतलब जिसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ स्टेज। अगर मरीज ऑपरेशन थिएटर में आना है तो लेके आने वाले ने, उसने ट्रॉली मैन लेके आना है, डॉक्टर इज़ नॉट गोइंग टू पुश इन। उसकी तैयारी जिसने करनी है वो एक नर्स है, उसके साथ उसका OT असिस्टेंट जिसको कहते हैं, या बाद में पट्टी वट्टी के लिए ड्रेसर है। एवरीबॉडी इज ट्रेन्ड ओवर देयर। अगर जैसे आपके, अगर मैं कहूँ अगर कैमरा के लिए तो किसी ने उठाना है, ड्राइवर वैन नहीं चलानी है, वो डॉक्टर या आप खुद तो नहीं चलाते होंगे। तो इसी तरह से हमारी प्रैक्टिस के अंदर भी एवरी पर्सन इज एलोकेटेड द ड्यूटीज़। जब वो अपनी ड्यूटीज़ के ऊपर करके चला जाता है तो फिर जाहिर है कि उसके साथ मसले मसाइल। वेरी प्रिसाइजली इस केस के ऊपर आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? मैं इसके लिए ये समझता हूँ कि ऑटोनॉमी इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके साथ एडमिनिस्ट्रेटिवली चीज़ों को देखना चाहिए और अपने अंदर ये शऊर हमें पैदा करना चाहिए। इसके अंदर मैं समझता हूँ कि वाइस चांसलर साहब जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के हैं, प्रिंसिपल जो भी डीन वहाँ पे लगाए गए उनको, MS जो है उनको देखना चाहिए, और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्जिकल टावर के लिए जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है, दे हैव टू सिट इन एंड थिंक ऑफ कि वहाँ पे क्या ऐसे फ्लॉज मौजूद हैं कि जिनको दुरुस्त करना चाहिए, फ्री फॉर ऑल। और इस किस्म का तसर एवरीवेयर छोटे BHU से लेके उस तक जो आके, और हर शख्स को अपनी जो जिम्मेदारियां उनका अहाता करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। और जब हम, एंड दीज आर रिटन SOPs, ये रिटन SOPs हैं कि किसका क्या क्या काम है और कैसे कैसे करना है। एंड सर्टनली इसकी खातिर जो विजिलेंस जिसने करनी है, जिसने सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है, दैट इज़ नोन एज द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि वहाँ पे सर्जरी के प्रोफेसर साहब भी होंगे, सर्जिकल टावर के इंचार्ज भी वहाँ पे मौजूद होंगे, थिएटर के जो इंचार्ज हैं वो भी मौजूद होंगे, AMS DMS होंगे, MS वहाँ पे है, प्रिंसिपल वहाँ पे है जिसको आजकल डीन कह दिया जाता है, वाइस चांसलर हु हिमसेल्फ इज़ अ सर्जन। तो वहाँ पे आना, अगर हमने सिस्टम ही नहीं बनाया और उसके साथ ये कि जी एक दिन, वो कहते हैं ना कि ये एक सदी का किस्सा है, 2-4 दिनों की बात वाली बात है, ये एकदम से नहीं हो गया। ऐसा नहीं हुआ कि ऐसा हुआ है। मीन बाय के हमने छोटे हुए थे, देयर वर सर्टन कंप्रोमाइजेस। उन कंप्रोमाइजेस का ये है, मैं तो समझता हूँ कि ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आप दोस्तों ने या बाकी किसी तरीके से वो एक सोशल मीडिया के साथ आ गया, अदरवाइज दीज आर हैपनिंग, यू आर वेरी मच राइट। लेकिन ये निज़ाम की जो है वो निज़ाम की वजह से होता है, और निज़ाम को दुरुस्त हमने इंसानों नहीं करने, और इंसानों के अंदर हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। एंड वी शुड मस्ट हैव अ करेज कि अगर मेरे साथ कोई गलत हो रहा है, एक्सेप्ट किया, दैट्स फाइन, लेकिन इसके साथ अल्टीमेटली उस भुगतने की तो नहीं बात कहना चाहिए, उसकी बेहतरी के लिए इंप्रूवमेंट की खातिर जो चेक लिस्ट है अपनी उसको रिव्यू करना चाहिए, और सब लोगों को मिल बैठ के, ये किसी एक बंदे का काम नहीं, मैं कहूँ जी ये सेक्रेटरी हेल्थ साहब को कर लेना चाहिए या वजीर सेहत को कर लेना चाहिए। दिस ऑल इज़ अ चेन ऑफ कमांड। आई बिलीव कि सेक्रेटेरिएट को भी इसका लेना चाहिए, जो नोटिस लेना चाहिए, मिनिस्टर हेल्थ को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, वाई इज इट हैपनिंग सो। अभी तो ये वहाँ पे देखा है, अगर आप डिलीवरीज की खातिर देते हो, डिलीवरी वहाँ पे आया करवा रही है, वहाँ पे ये मतलब दिस इज हैपनिंग, यानी सबको अपनी जिम्मेदारी, एवरीबॉडी हैज टू बी प्रिसाइजली, और चेक एंड बैलेंस जो वो रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया। PMS लाहौर के सदर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने जो मुद्दई है केस का उसकी गुफ्तगू सुनी, MS साहब की गुफ्तगू सुनी, माहिर नफ्सियात के आपने जो व्यूज़ वो भी सुने। निज़ामी साहब की बात में बहुत दम है कि तमाम लोग अगर अपना काम ऐसे तरीके से करना शुरू कर दें, अपनी ज़िम्मेदारी को ज़िम्मेदारी समझ के करना शुरू कर दें, तो बहुत से ऐसे वाक़यात जो हैं वो रोनुमा नहीं होंगे। इस केस के अंदर कुछ कहते हैं कि बुरसा को भी थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए थी, लेकिन हस्पताल के अंदर जब एक शख्स जाता है तो उसका स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा होता है, वो इतना पैनिक्ड होता है कि उसको कुछ भी नहीं सूझ रहा होता, और कोई भी जो भी उसको मशवरा देता है वो उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देता है। और शायद इस केस में भी ऐसे हुआ कि जो मुद्दई था वो अपनी वालदा को लेकर इतना परेशान था
कि जब उसको कहा गया कि माइनर ऑपरेशन थिएटर में ले जाएं और वहाँ से जाके इसको रिमूव करवा लें, जो बेड सॉर था उसको रिमूव कराने के चक्कर में उसने करवा ली और अल्टीमेटली उनको एक हादसे का सामना करना पड़ा और अल्लाह ने बचा लिया। ये एक सानिया भी हो सकता था, खातून अपनी जान से भी जा सकती थी, लेकिन बर वक्त तशखीस हो गई, वो अस्पताल दोबारा ले आए और फिर MS के नॉलेज में चीज़ें आई और तमाम चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हो गई और अब जो खातून है वो रूबा सेहत हैं। लेकिन तमाम अफराद इस बात के ऊपर भी मुत्तफिक हैं कि ये वाक़यात सिर्फ एक पहला वाक़या नहीं, ये वाक़यात हो रहे हैं लेकिन हमारी नज़रों से ओझल हैं और अगर ये आ गया है तो एक प्रेसिडेंट सेट कर देना चाहिए। ऐसे अफराद को इतनी सख्त सज़ा देनी चाहिए कि आइंदा कोई भी किसी की जान से खेलने की हिम्मत ना करे। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।